Hello students, how are you? I hope you all enjoy very good health at your homes. So you all are welcome in class 11. The subject is political science. So students, today we are going to take the topic from the part B, that is political theory. We already have completed 4 chapters from this book. So let's start today's topic. See the collage. See it very carefully. Are you having any idea that which topic we are going to start? Yes, this is the rights, fundamental rights we already have done. But in this chapter we will deal only rights. So students, I would like to make it clear that in part A, we already have completed fundamental rights. Those rights are related to Indian Constitution, the rights which we are going to enjoy in India by Indian Constitution. But here in this topic, the book deals with the overall world politics. So here we are going to deal the rights topic. This topic deals with the universal rights, and fundamental rights are the part of these rights. Okay, so this is the topic rights. So let's start the topic. First of all, we will have the introduction. What is the meaning of the rights? Actually, rights are the primarily those claims which are necessary for leading a life of respect and dignity. ये वो राइट्स हमारे वो क्लेम होते हैं, एक तरह का दावा होता है जो हम हक जताते हैं किसी चीज़ के लिए, वो स्पेशली हमारे लिए एक रिस्पेक्टेबल, एक डिग्निटी वाली जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको जीने के लिए हम अपने दावे करते हैं, क्लेम करते हैं. So now see, we are having different type of rights here. Okay, we need the equality also, peace, dignity, justice, freedom and life. No torture should be there, no slavery, liberty. Means all these rights are necessary for leading a respectable life. Now have the detail of the rights. Actually rights we already have discussed, these are primarily those state recognized claims. See here, earlier we have discussed these are the claims, but these are the claims recognized by the state. ये हमारी जो राज्य हमारा देश है उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, और हर इंडिविजुअल को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए ये जरूरी है, ये वो क्लेम्स हैं. Okay, so these are essential, a justified claim or an entitlement. So rights are important as they help individuals to develop their capacity to reason, develop their skill and enable them to make informed choices in the life. सो राइट्स क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्सन को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करने का, उसको तरक्की करने का मौका मिलता है. नाउ बेसिस कौन से हैं, किस बेस पे हम राइट्स के लिए क्लेम करते हैं, द बेसिस ऑन विच क्लेम्स टू राइट्स कैन बी मेड, वो कौन से हैं. एक तो हो गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडीशंस that individuals collectively see as a source of self respect and dignity. ओवरऑल अगर हम बात करें, सारे इंडिविजुअल, एक सोसाइटी में रहने वाले सारे जो नागरिक हैं, सारे जो आम इंसान हैं, उनके लिए एक रिस्पेक्टेबल डिग्निटी वाली लाइफ है जो जीने के लिए, तो वो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के प्रमोट करने के लिए जो हम क्लेम करते हैं वो क्या होगी, हमारे राइट्स होगी. सो द नेसेसिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल्स वेल बीइंग, ये बहुत ज़रूरी है हर पर्सन की वेल बीइंग के लिए, उसका सही तरीके से विकास करने के लिए हमें राइट्स, ये एक तरह के क्लेम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. राइट्स को किस बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिवर्सल है. यूनिवर्सल होता है जो पूरे वर्ल्ड में या पूरी मानवता के लिए, ये नहीं कि किसी एक सोसाइटी के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए. नो, द राइट्स आर मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल मैनकाइंड. तो इसमें इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल राइट्स. तो यूनिवर्सल राइट्स कौन से हैं, द राइट्स फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे ह्यूमन बीइंग के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेसेस इन सोसाइटी, कन्फर्स universality on these rights.
The assumption behind human right is the entitlement of human rights to certain rights that ensure self-respect, dignity by virtue of being born as human. एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक इंसान की हैसियत से जो हम पैदा हुए हैं, भगवान ने एक इंसान बना के भेजा, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, जो उसका एक ओहदा है, उसको कायम रखने के लिए, उसको रिस्पेक्टफुली मेंटेन रखने के लिए ये ह्यूमन राइट्स सबके लिए कंपलसरी हैं. सो वी कैन से ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स whose entitlement is not negotiable. इसके ऊपर हम समझौता नहीं करते. ये सारे इंसान होने के नाते ये राइट्स सबको मिलने चाहिए. सो राइट्स वी आर हैविंग आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ राइट्स जिनको हम यूनिवर्सल मानते हैं. ऐसे 3 राइट्स हैं जो पूरे मानवता के लिए, पूरी ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए जरूरी है. तो ये कौन से राइट है? फर्स्ट इज राइट टू एजुकेशन. सबको मिलना चाहिए पढ़ने का अधिकार, बढ़ने का अधिकार. तो क्योंकि नेचर ने सबको, इंडिविजुअल्स को कोई ना कोई कैपेसिटी दे के भेजा है, कोई ना कोई स्किल दे के भेजा है, तो उस स्किल को हमने पॉलिश करना है, उसको और ज़्यादा डेवलप करना है. तो इसके लिए सबको क्या है? राइट टू एजुकेशन इज़ कंपल्सरी. नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट है, जो पूरे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का मेन है, दैट इज़ राइट टू लाइवलीहुड. It ensures the self-respect, dignity of the individuals through economic independence. मतलब सबको अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा हक है. ये नहीं कि किसी को काम करने का मौका ही न मिले, वो मांग के खाएगा. नो, लाइवलीहुड एक ऐसा है अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट से इंसान कमा के खाता है, तो इसमें उसकी इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंस है वो भी आ जाती है. तो लाइवलीहुड का राइट, रोजी रोटी कमाने का राइट सबको है, क्योंकि इससे सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका मान सम्मान, डिग्निटी बना रहता है. देन नेक्स्ट हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ये भी एज अ ह्यूमन बीइंग भगवान ने सबको डिफरेंट फीलिंग्स दी हैं, टैलेंट्स दिए हैं, स्किल दिए हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने का राइट है. फ्रीडम टू एक्सप्रेस. This is very important for all human beings as it develops creativity, originality and allows for free expression of ideas and beliefs. हर कोई इंसान अपने जो मत हैं, उनके आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकता है. देन हम देखते हैं कि ट्राइबल पीपल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? द ट्राइबल पीपल दोज हु यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट. उनका एक अलग कबीला है. हमारे सिटी से नियरली वो कट ऑफ होते हैं, जो हमारी डेली की सिटी लाइफ है. तो ऐसे ट्राइबल पीपल हैं, उनका मेन हैबिटेट, उनका जो रेजिडेंस है वो सिर्फ कहाँ पे है? जंगलों में. ओल्ड स्टाइल है उनका, प्रिमिटेटिव जो स्टाइल है उनकी लाइफ का. उनको भी कुछ राइट्स मिले हुए हैं. वो राइट्स कौन से हैं? फर्स्ट हम देखेंगे द क्लेम ऑफ द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट. मतलब उनका रेजिडेंस, जहाँ पे वो रह रहे हैं, निवास है उनका, जो नेचर में रह रहे हैं, एंड द वे ऑफ लाइफ, जिस लाइफ स्टाइल से वो जी रहे हैं, तो उसको रखने का वो क्लेम कर सकते हैं. ये उनके पास ये पूरा राइट है. रिस्पेक्टफुली उसको सिक्योर कर सकते हैं. तो दूसरा हम कह सकते हैं दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन सोसाइटी एंड इट्स बिलीव्स एंड प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस और राइट्स टू पीपल टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस कल्चर. उन लोगों को, ट्राइबल पीपल को, अपनी मान सम्मान के साथ अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, उसको जो उनके विश्वास हैं, बिलीफ्स बने हुए हैं, उनके फैक्ट्स हैं, वो सब उनको मेंटेन करने का पूरा राइट है. और जो उनका ओल्ड कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा राइट है. इसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं, राइट्स मांग सकते हैं. देश की गवर्नमेंट उनको ये राइट्स देगी. नाउ सी, दो ट्राइबल पीपल हैं, उनमें जो एक राइट है, वो अपनी जो लैंड है, जिस एरिया पे वो रह रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे आउटसाइड एरिया है, तो उस एरिया के ऊपर उनको पूरा हक है कि वहाँ पे वो अपना निवास बनाएं. एंड दे आर गिवन स्पेशल फैसिलिटीज़. एजुकेशन में उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलती है. आसपास गवर्नमेंट उनको स्कूल्स, जॉब्स के लिए छोटे छोटे वर्क, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेंटेन करके देती है. और उनको मेडिसिन्स का, हेल्थ केयर का भी पूरा राइट है, so that they can compete with the rest of the society on equal terms. नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो ट्राइबल पीपल हैं उनके और कौन से राइट्स हैं. जैसे उनके बच्चे हैं या कोई और बच्चे हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बिना पेमेंट से काम करवाया जाता है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर. तो उनको भी जो राइट्स है पूरा उनको क्लेम करने का हक है कि उनसे ये बॉन्डेड लेबर ना करवाई जाए.
सो इसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे हमारा राइट हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करने का उनको पूरा पूरा राइट है। अगर इन केस उनके ये राइट्स वायलेट होते हैं, दे कैन अप्रोच टू द गवर्नमेंट और दे कैन अप्रोच टू द जुडिशरी। सो राइट्स टू एजुकेशन इज अ न्यू राइट, इट इज़ गिवन इन ऑल इंडियन चिल्ड्रन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस सबको दिया गया है, वैसे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, राइट्स सबको मिले हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भी अडॉप्ट किया है और अपने कंट्री में बिलो 14 सारे स्टूडेंट्स को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का राइट है। एंड दिस राइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन एजुकेशन। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमारा न्यू राइट है, RTI। It is a new right that helps the citizen to know the status or the procedure of the services that they are entitled to receive। जो भी गवर्नमेंट उनके लिए वर्क कर रही है, सर्विसेज कर रही है, उनकी पूरी जानकारी, उनका स्टेटस मतलब कहाँ तक काम हुआ है, कैसा हुआ है, ये गवर्नमेंट अपने लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकती है और लोगों को पूरा राइट है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन। नाउ ये हमारे जो राइट्स हैं, मेजर राइट्स हैं हमारे, जैसे पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। सो लेट्स हैव द डिफरेंस। जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स इसके नाम से क्लियर होता है, जो राइट्स हमें पॉलिटिक्स से अटैच्ड है, हमारे वो राइट्स है। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है, चाहे वो हम पार्टी बना रहे हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट्स दे रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू बी इलेक्टेड भी हमारे पास राइट है। तो ये सारे जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और ये सारे इक्वलिटी बेस पे हैं, लॉ के आगे सब इक्वल है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में, या फिर प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट का, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ये सब हमारे क्या है, पॉलिटिकल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल राइट्स के बिना वी कॉन्ट इमेजिन द डेमोक्रेसी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट डील्स विद द मनी मैटर्स, जो पैसे से, कारोबार से, कामकाज से, जॉब से रिलेटेड है। तो ये राइट्स सबको मिलना चाहिए। अगर जॉब है, इकोनॉमिक स्टेटस है, तो पर्सन अपने दूसरे राइट्स के लिए भी क्लेम कर सकता है। अगर पर्सन बहुत पुअर है, उसके पास इकोनॉमिक राइट्स ही नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, तो वी कॉन्ट इमेजिन दैट पर्सन कैन यूज़ द अदर पॉलिटिकल और अदर ह्यूमन राइट्स। अगर इकोनॉमिकली साउंड है, उसके पास मनी है, स्टेटस अच्छा है, अच्छा फूड, शेल्टर, क्लोथ, सारी बेसिक चीज़ें पूरी है, तो वो पर्सन अपने पॉलिटिकल राइट्स को भी अच्छे से डील कर सकते हैं। सो वी कैन से द पॉलिटिकल राइट्स, they ensure the entitlement of basic need of food, shelter. It is related to the work, job और other basic labor things. नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स राइट्स हैं। इसके लिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि मिनिमम वेजेस जो हमारा एक एक्ट बना हुआ है कि एटलीस्ट जो वर्कर्स हैं उनको इतने मिनिमम वेज, कम से कम इतनी वेजेस मिलनी चाहिए। अगर पर्सन को पॉलिटिकली नॉलेज है, पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स कहीं ना कहीं एक साथ चल रहे हैं, तो जो हम इकॉनमी में डील करते हैं वो पॉलिटिकल में हमें राइट्स मिले हुए हैं। सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स। नाउ सी राइट्स, हम देखते हैं डिफरेंस देख रहे थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स में। तो अब देखते हैं कल्चरल राइट्स कौन से हैं। कल्चर से रिलेटेड हर पर्सन, हर कम्युनिटी का अपना एक बैकग्राउंड है, उनका अपना एक टेस्ट है, अपना एक कल्चर है, उनका एक रिलीजियस कल्चर हो सकता है, सोशल कल्चर हो सकता है, लिंग्विस्टिक, और ये सारे कल्चर को मेंटेन करने का पूरा पूरा राइट है सारे सिटीजन्स को। तो जो हमारे राइट्स हैं, राइट्स इस चीज़ का क्लेम है, दावा है कि हर पर्सन अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी शान, उसकी आन बान, उसकी रेस्पेक्ट, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट्स है। अगर ये दोनों राइट्स प्रॉपर पर्सन के पास हैं, उनको नॉलेज है इसको यूज़ करने की, तो वो अपने कल्चरल राइट्स को भी प्रमोट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर पर्सन को अपने पॉलिटिकल राइट्स का मीनिंग नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, वीक है, सो दोज पर्सन आर अनेबल टू यूज़ देयर कल्चरल राइट्स। सो राइट्स टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, टू प्रिजर्व वंस लैंग्वेज, ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है। मतलब अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्सन अपना जो
एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपना खुद का भी खोल सकते हैं ताकि वो अपने लैंग्वेज और कल्चर को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन राइट्स। एक ह्यूमन होने के नाते सबको जो यूनिवर्सल राइट्स मिले हुए हैं वो होते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स, और इनको मान्यता दी गई है, रिकॉग्निशन दी गई है हमारी यूनाइटेड नेशन। डू यू रिमेंबर, यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड की एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है टू अवॉइड द वार, टू एस्टेब्लिश द पीस एंड कोऑपरेशन एंड टू अपलिफ्ट द ह्यूमन स्टैंडर्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए काम करना है। तो ये हमारी जो 10 दिसंबर 1948 को जो हमारी यूनाइटेड नेशन है उसका एक उसकी एक एजेंसी है, उसका मेन ऑर्गन है दैट इज जनरल असेंबली, जिसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो जनरल असेंबली ने 1948 को इस चीज़ को अडॉप्ट किया, प्रोक्लेम किया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की, सारे ह्यूमंस के लिए यूनिवर्सली डिक्लेरेशन दी कि सबको ये राइट्स इजीली और हर हालत में मिलने चाहिए, कंपल्सरी। ओके, तो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है, एक कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए पूरे ह्यूमन बींग्स का, उनका लाइफस्टाइल पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड बीइंग अ ह्यूमन, ये राइट्स सबको मिलने चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं लाइक नो टॉर्चर, फ्री इलेक्शन, मैरिज नो डिस्क्रिमिनेशन, इन एजुकेशन नो डिस्क्रिमिनेशन, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ एंड नो डेथ पेनल्टी। अकॉर्डिंग टू जो ह्यूमन राइट्स है वो किसी को सेंटेंस टू डेथ भी नहीं देती। इसलिए जो हमारे जेल हैं आजकल उनको जेल नहीं इम्प्रूवमेंट हाउस बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट राइट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को दिए हैं। इस पर अपने रिलीजन, अपनी कॉन्साइंस, अपनी जो रेस्पेक्टफुल स्टेटस है इसको जीने का पूरा हक है सबको। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कौन कौन सी ह्यूमन राइट्स हैं। मेजर हमारे जो ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले हमारा एजुकेशन का, कि सारे ह्यूमंस को एजुकेशन लेने का राइट है, असेंबलीज फॉर्म करने का, सभा बनाने का, एसोसिएशंस बनाने का, पार्टी बनाने का, उनमें पार्टिसिपेट करना है, कोई मूवमेंट स्टार्ट करनी है, आंदोलन शुरू करना है, या रिलीजन के रिगार्डिंग है, स्पीच और एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव जो उनका बोलना है उसको व्यक्त कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू प्रेस है, इंडिपेंडेंट प्रेस होनी चाहिए कि जो सबके लिए इम्पार्शल होकर काम करती है। तो ये सारे राइट्स एज अ ह्यूमन जो हमारी यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में डिक्लेयर हुए थे। सो अब स्टूडेंट्स देखते हैं ये राइट्स, कितनी तरह के राइट्स हमने डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स हैं और कल्चरल राइट्स हैं। इसके अलावा हमने पढ़े हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। सो राइट्स टेक प्लेस सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सबसे बड़ी बात, अगर ह्यूमंस और सिटीजन के पास, पीपल के पास, लोगों के पास राइट्स हैं, तो अगर वो अपने राइट्स, अपने क्लेम, अपने दावे उनके प्रति अलर्ट है, उनको अच्छे से यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर वो एक तरह की लिमिट लगा देती है। मतलब उस केस में गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अपनी पावर को मिस यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज पीपल आर हैविंग द राइट्स एंड दे आर वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स। सो लेट्स हैव द डिटेल ऑफ दिस। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि राइट्स हैं गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, जितने हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर एक रोक लगाती है, उनको उनकी पावर्स को लिमिट करती है। ओके, सबसे पहले राइट प्लेस सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एज दे मेक द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस। क्योंकि लोगों के पास राइट्स हैं, वो स्टेट को मजबूर कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस भी कर सकते हैं किसी वे से, ताकि वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले और अपनी जो एक्शन है उनकी प्रॉपर, जो काम है उनको, उनकी कार्यवाही प्रॉपर अच्छे से करे। सो राइट्स प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू टेक इन अ सर्टन वे। एक अच्छे तरीके से उसको काम करने की प्रेरणा भी देती है, एक तरह की ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट इंश्योर करती है कि जो पॉलिसी उन्होंने लोगों को प्रोवाइड की थी, इंडिविजुअल को प्रोवाइड की थी, वो सच में बेसिक नीड्स उनको दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। सपोज हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर हैविंग मेनी प्रोमिसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, बट आफ्टर दैट दिस इज द राइट ऑफ द पीपल टू बी अवेयर एंड कीप अ चेक ऑन द वर्क ऑफ द
representative, councillors, MLAs, और they can also ask the questions from them. सो अगर इस वजह से लोग अवेयर अपने राइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव हमारे अथॉरिटीज़ वो भी क्या करेंगे, इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक नीड्स को उन्होंने प्रॉमिस किए वो जरूर उनको प्रोवाइड करेंगे। तो राइट्स क्या करते हैं, सुजेस्ट करते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर स्टेट लॉ बनाती है, दे कैन नॉट मेक द लॉ, तो वो लॉ ऐसे होने चाहिए जो सिटीज़न के राइट्स को वायलेट ना करें, उनको तोड़े ना, उनके रास्ते में रुकावट ना बने। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे जो संविधान से दिए गए हैं हमें, तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है उनको, ताकि कोई राइट्स को वायलेट ना करे। संविधान में बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस दी जाती हैं जिससे गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम ना करे कि लोगों के राइट्स को भंग कर दे, जो उनको वायलेट कर दे। जैसे हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये बेसिक राइट है ह्यूमन का। तो इस अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो स्टेट इसको स्टॉप नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं एक्सप्रेस करना, ऐसा नहीं बोलना। हमारे पास मीडिया है, वी कैन गो अगेंस्ट और वी कैन गो इन फेवर। तो जो भी एक्सप्रेशन है स्टेट कैन नॉट पुट एनी लिमिट ऑन दिस, तो लोगों का ये फ्रीडम का राइट है। सो द स्टेट कैन नॉट अरेस्ट एनी इंडिविजुअल अननेसेसरली। अगर स्टेट अनलॉफुली कोई ऐसा काम करे, किसी पर्सन को अरेस्ट करे, जो उसके ऊपर कोई और तरह का दबाव डाले, प्रेशराइज करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे राइट्स है, लोगों के पास राइट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, और हमारे पास लीगल राइट्स है जो गवर्नमेंट को गलत काम करने से रोकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक. Again I am saying to you to watch the video repeatedly. Okay, whatever the chapter you have discussed in the earlier classes, this right is different than that, because earlier हमने fundamental rights पढ़े हैं. Fundamental rights are the part of the rights, जो हमारे main rights हैं, universal rights हैं, इसमें human rights और भी बहुत तरह के rights आ जाते हैं, और fundamental rights are one of them. So don't mix these both topics. Okay, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगेन आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो रिपीटेडली एंड कीप सेव द लिस्ट. आप एक लिस्ट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको अपनी सेव लिस्ट में सेव करके रखिए. इसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, देन सेव द वीडियोस. सो स्टूडेंट्स, वी विल बी सून देयर विद द न्यू टॉपिक. टिल दैट स्टूडेंट्स, stay healthy, stay fit. Goodbye students.